जो भी लोग पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ करते हैं, ये अज्ञानी लोग हैं। और जो ज्ञानी लोग हैं उनको इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि जो ज्ञानी है वो आत्मा से मिल चुका है। आत्मा से मिल चुका है मतलब परमात्मा से मिल चुका है। तो जो परमात्मा से मिल चुका है वो यज्ञ पूजा पाठ क्यों करेगा? सम पीपल मे गेट ऑफेंडेड व्हेन आई हैव पोस्टेड अ पोस्ट कि वेदास एंड पुराणास आर फॉर फूल्स। I made this post because and it is the exact phrase of अष्टवक्र. Even Osho said this कि अगर तुम enlightened हो ना, तुम्हारे अंदर से वेद निकलेंगे, जो तुम बोलोगे वो वेद बन जाएगा। So, Ashutosh, welcome back to my podcast, man. It's been great. We had you just last season and you were one of our first guests. Welcome back. Thanks for welcoming us again. Thanks for giving this chance again. And today, not in the tech, but we have a different. I owe you a different podcast, which is on spirituality. And today, definitely, we will going to debunk few things and we will going to tell new things to the audience. I'm sure, and I think this conversation we had even last time, na? Like when we did this, and we were sitting in my room and we were discussing so many alignments were there. I can say between spirituality. We were sharing the same energy, Yeah. same synergy. So, Ashutosh, I have one question. Before we deep dive into the bigger questions of life, what is spirituality in a very, very, very one mark answer kind? You know, for our listeners, what is spirituality according to you in the simplest way? Spirituality in the simplest way can be explained as let it be in the sense of the physical body. What I'm saying, I'm not saying to pull or push anything within the body or throughout the body. I have to do these things to be spiritual. Just let it be. Whatever your body structure is, whatever nature has given to you, just let it be within your mind and within your body. Basically, like we follow spirituality. We learn meditation. Why we are learning meditation? To liberate ourselves, to liberate our body strains, to liberate our body stress, to liberate our mind stress. So that means meditation is that technique or that tool which is helping us to liberate our body and mind. So that means spirituality is something which is helping us to let it be in that state which nature has given to us. That means free, liberation state. So, I somehow feel spirituality is the understanding of a human being's inner compass. Because somewhere inside you there is a voice, there is a direction, there is a instinct that comes, and I feel a lot of it comes from your subconscious mind. It comes from the spiritual world, but understanding that there is a spiritual body, there is an emotional body, and then there's a physical body, but all in unity, the spiritual body takes the highest weightage. So for me that it is. Now before we dive into it, when did you start getting into spirituality and what was like your first experience of it? So my spirituality journey begins with my Hindi teacher. Okay. So she used to be a follower of Art of Living. So Okay. she used to tell us about Sudarshan Kriya and all. And one day she उन्होंने सब पूरी क्लास को सुदर्शन क्रिया का एक मेडिटेशन कराया. And we felt very light after that meditation. तो that was the first time I feel कि यार ये बड़ा अच्छा चीज़ है, इसको रोज़ कर रहे हैं तो मज़ा आ जाएगा. Then I start. Also I was religious at that time. तो हमारे religious बुक में तो बहुत लिखा रहता है कि यार ध्यान करो, ये करो, वो करो, योग वगैरह. So at that time it was the first time where I used to start in these things. तो एक्सपेरिमेंट करना, यहाँ मतलब मेडिटेशन अलग अलग तरह की सीखना. त्राटक हो गया एक मेडिटेशन, या फिर फोरहेड पे मेडिटेशन करना, शून्य जैसे मेडिटेशन करना. तो वहाँ से फिर जर्नी स्टार्ट हुआ. 11th-12th एक ऐसा फेज आता है जहाँ पे तुम बिजी हो जाते हो, तो वहाँ पे वो छूट जाता है. तो 9th में किया थोड़ा सा, 10th में किया, 11th-12th में छूट गया. फिर कॉलेज में भी फर्स्ट ईयर कुछ खास नहीं रहा, नो मेडिटेशन, बिकॉज एकदम आज़ादी मिलती है कि यार अब करेंगे. सेकेंड ईयर से यू बिकेम मैच्योर कि यार नहीं, स्टडीज़ भी करनी है और अब तुम्हारा स्टडीज़ का बर्डन है और अब तुम्हें वो मैनेज भी करना है. अब मैनेज करने के लिए तुम्हें मेडिटेशन की ज़रूरत पड़ जाती है. अब इट डिपेंड्स, सबको नहीं ज़रूरत पड़ती. अब शायद मेरे ऐसे संस्कार रहे होंगे कि मैंने पहले मेडिटेशन किया होगा तो अब मेरे को ट्रिगर हुआ कि मेरे को मेडिटेशन करना चाहिए. तो मैंने मेडिटेशन फिर वापस से स्टार्ट करना शुरू किया और अब काफ़ी अच्छे स्टेट पे है. So bro, I also understand meditation is not like a one-time thing or a one-day thing. So you started early in life and then you had a gap and then you got back to it in college. But where did you actually learn it? Did you go to the internet? Did you have a teacher, or what was the concept of meditation for you? Well,
I didn't went to internet to learn about meditation. Yeah, I got few sources about meditation कि start कैसे करें, कहाँ से करें. But most of it, what I have experienced or what I practice is my things only. So even if Art of Living has Sudarshan Kriya, I have tried that, but I don't do it regularly. Isha Kriya, I don't do it regularly. But there are few universal methods, like forehead method. Everyone includes the forehead method, even it's Sudarshan or whether it's Isha Kriya. So forehead method, then you experiment with the forehead method, like point, like you have a point there. Then you take this point from here to backside. Even you can take this point, the energy point from throughout your body. कहीं भी ले जा सकते हो उसको, हाथ में ले जा सकता हूँ. China people call these chi, the power of chi. उनका भी सेम कॉन्सेप्ट है. हम बस इसको प्राणवायु कहते हैं, कुछ लोग हम में से शक्ति कहते हैं. तो बेसिक कॉन्सेप्ट वही है. तो जस्ट आई एक्सपेरिमेंटेड दीज थिंग्स. और स्टार्टिंग मैंने किया था त्राटक से, क्योंकि दैट्स द सेफेस्ट एंड दैट्स वो इनर जर्नी ना होके वो आउटर जर्नी होती है, क्योंकि एक सामने कैंडल फ्लेम है, तुम्हें उसको ही फोकस करके दिखते रहना है. वो आउटर जर्नी है, तुम्हें इतना फोकस्ड रहना है. मतलब मैं बताता हूँ, त्राटक का एक ऐसा लेवल आता है जब आंखें खुले तुम्हें आंसू आ जाते हैं. एक होता है कि आंखें बंद करके तुम मेडिटेशन करो तो आंसू आने शुरू हो जाते हैं. त्राटक में भी इतना गहरा लेवल आता है कि जब तुम उसको देखते रहते हो तो अपने आप आंसू बह जाते हैं. दैट लेवल, वो अगर तुम 10 लगातार 15 मिनट से कहता हूँ, मतलब मेरा ऐसा एक्सपीरियंस, 15 मिनट तक लगातार उसको देखोगे बिना पलक झपके, भलक झपकती हैं पलक 3-4 बार झपकेंगे, कोई बात नहीं, कोशिश करो. लेकिन एक स्टेट आ जाता है जहाँ पे साइड का सब गायब हो जाएगा और फ्लेम का एक पॉइंट दिखेगा. Oh yeah. और बस आंखों से आंसू आएगा. दैट इंटेंस. So this is basically the flame meditation, right? Like focus on a flame or focus on one point on a ball, one point, single nuclear point. Usually they also do this in Vipassana meditation. Where Vipassana is another meditation form which is mostly you go into silence for a few days and you all those 65,000 thoughts you get in a day, you sit and you witness it and you witness it. So it is somewhere around Vipassana. It is around Vipassana. So bro, tell me this one thing. What has changed in your life after you have included meditation on a regular basis? What is that big change you see in yourself? The processing of thoughts, of speech, कि मैं जो बोलने वाला हूँ वो पहले प्रोसेस हो जाएगा मेरे अंदर. उस सडन कोई एकदम नहीं, कोई मेरे को ट्रिगर नहीं कर सकता. अब तुम कुछ भी बोलो मेरे को, अगर तुम गाली भी दोगे ट्रिगर नहीं होऊंगा मैं. तो वो मेरे हाथ में आ चुका है. मतलब मेरा कंट्रोल मेरे हाथ में आ चुका है. तुम गुस्सा दिलाना चाहोगे वो तुम नहीं दिला पाओगे जब तक मैं नहीं चाहूँगा. सो स्पिरिचुअलिटी या मेडिटेशन ने वो चीज़ की है. मतलब आई यूज टू गेट कंट्रोल ओवर माई सेंसेस, ओवर माई अर्जेस, वेदर इट्स बी इमोशनल, वेदर इट्स बी फिजिकल, और वेदर इट्स बी सम एनर्जेटिक इन द सेंस ऑफ कि अगर कोई बाहर से आदमी आता है, थोड़ी बैड एनर्जीज का, नेगेटिव एनर्जीज का होते हैं कुछ लोग, उनके आने से बड़ा अजीब सा लगता है. I will not get affected by them. So that kind of control over my energy system also, physical system, my mental system and the energy system. That's so इस पे control आता है. So इसमें फिर काफ़ी चीज़ें और भी होते हैं. मतलब अब एनर्जी सिस्टम में आगे जाते हैं तो फिर तंत्र भी आ जाता है कि फिर अगर वो लोग भी ट्राई करते हैं तो यू विल नॉट गेट अफेक्टेड विद दैट, कि तुमने उस पर कंट्रोल कर लिया है अपनी एनर्जीज पे, तुमने शील्ड बना के रखी है खुद से. तो ये हर चीज़ पे मेरे को हेल्प कर रहा है, फिजिकली, मेंटली. मतलब मैं तो कहूँगा मेंटली ज़्यादा हेल्प कर रहा है, क्योंकि अगर बंदा मेंटली एक बार वीक पड़ जाता है ना, उसकी फिजिकल बॉडी ऑटोमेटिक वीक पड़ जाती है. इफ़ यू आर इन डिप्रेशन तो तुम्हें चांसेस हैं कि तुम्हें बीमारियाँ जल्दी होंगी, तुम्हें शुगर जैसी बीमारियाँ जल्दी होंगी, तुम्हारा इम्यून सिस्टम बिगड़ जाएगा. एंड इट हैज़ बीन साइंटिफिकली प्रूवन कि अगर कोई डिप्रेस्ड है तो उसका इम्यून सिस्टम अच्छे से काम नहीं करता, उसका डाइजेशन अच्छे से काम नहीं करता. तो मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है. और मैं बताता हूँ मेरे लिए किस लेवल तक पहुँच गया है. अभी मेरे इतने कंट्रोल में कि मैं चाहूँ तो एक थॉट में किसी भी चीज़ को ऐसे हटा सकता हूँ. मतलब फॉर एग्जांपल अभी मेरे साथ बहुत ही कोई ड्रास्टिक चीज़ हो गई और मतलब मैं उससे बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया, मैं चाहूँ तो एक थॉट में उसको चल हट गया, ये वाली चीज़. So I feel what you're saying, bro, is the art of separation. Na? Like when you don't meditate, I feel this is what happens. When you meditate, you see the difference between you and the body, and the same difference is brought onto a thought. You will realize you are not the thought and you can remove the thought. So that attachment level to the thought is not there. So the separation that you do in meditation between you and your body is the same separation you can do between you and your thought.
at one time you became the observer of yourself, हाँ. even the observer of your thoughts. मैं क्या सोच रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं बाहर से गया और मतलब जैसे हम जजमेंटल हो जाते हैं कभी बार, तो कोई आदमी गया सामने से या कोई ऑटो रिक्शा वाला गया, हम जजमेंटल हो गए, लेकिन फिर पीछे से एक ऑब्जर्वर आ गया, हाँ तूने जज कर लिया ना उसको, दैट ऑब्जर्वर. और एक्चुअल में वो ऑब्जर्वर सबके पास होता है, लेकिन लोग अपनी ईगो से उसको दबा लेते हैं. करेक्ट, इट शट्स ऑफ. हाँ, वो कहते हैं कि अरे वो ऐसे ही तो था, ऑटो रिक्शा वाला ऐसे ही तो था, जो उसको वो छुपा लेते हैं. लेकिन एक ऑब्जर्वर अगर पीछे से देख लेता है तो वो उसको रिपोर्ट देता है कि तूने गलत किया ना, अभी ऐसे जज नहीं करना चाहिए था. तो बीइंग ट्रूथफुल टू योर ओन, ये भी एक बहुत बड़ी कला है, ये हर किसी को जल्दी से नहीं आएगी. I think I just want to share a thought, bro. A lot of spirituality comes from different ways, and in our culture, in India, it could come from bhakti, it could come from gnana, it could come from karma. There are multiple forms of yoga. Now, can we just simplify each one of it for our audience so that it need not be that you're meditating all the time. You can gain a level of spirituality just by acquiring knowledge. Or you can just be you could be ultra devoted, and like some of our parents sometimes they just sit in the god house at home and they do puja, and they might find their spirituality there. Some people find it in their action, right? So what is it that you feel is your way of doing it, and can we define each one, what all the yogas? Sure. So I just read this thing in I'm reading a Shiv Gita. So I've read there ki if someone is following a religious path and he is doing all the karm kand and puja. Karm kand means pujan, pathan, yagge, havan वगैरह. That's called karm kand. So अगर if anyone is doing karm kand and all these puja, he will get benefit of these. ठीक है? But if someone who is enlightened, spiritually enlightened, and if he do these things, he will not get benefits of these, because वो एनलाइटेंड वन को ऑलरेडी ज्ञान मिल चुका है, और वो ज्ञान मिलने के बाद भी अगर ऐसी चीज करे तो काहे का ज्ञानी. तो फिर उसके लिए वो काम नहीं करती. और ऐसा स्पष्ट लिखा हुआ है शिव गीता में, जो शिव जी ने खुद राम को बोला है. क्योंकि राम के भी दिमाग में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि यार जो लोग मतलब शिव जी ने ऐसा बोल दिया राम को, ऐसा मतलब वो जब बहुत दुखी थे सीता के वियोग में, तो उनको समझा रहे थे, उनको तत्व ज्ञान दे रहे थे, तो उनको ऐसा बोल दिया कि जो भी लोग पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ करते हैं, ये अज्ञानी लोग हैं, और जो ज्ञानी लोग हैं उनको इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि जो ज्ञानी है वो आत्मा से मिल चुका है. आत्मा से मिल चुका है मतलब परमात्मा से मिल चुका है. तो जो परमात्मा से मिल चुका है वो यज्ञ पूजा पाठ क्यों करेगा? So basically it is to say, if you can reach level 5, why are you doing level 1 work? हाँ. So even in my community, in my spiritual community, some people may get offended when I have posted a post ki Vedas and Puranas are for fools. I made this post because it is the exact phrase of Ashtavakra. Ashtavakra, because Ashtavakra is talking about level 5. He thinks that Vedas and Puranas are on level 1, because Vedas and Puranas are the basic tutorials. They are the tutorials how to live a life, how to get to the liberation. Maybe I'll put it this way. Maybe Vedas and Puranas are the manual of the product. Manual of the product. This is the actual product. Of the human life. To live it. But spirituality is the way to discover. Live. To discover how to live yourself. It is the same way. Destination same है. बट ये मैनुअल मिल गया तुम्हें, और यहाँ से तुम खुद चल गए हो पहुंच के. अब तुम अगर वहां पे पहुंच गए हो और फिर भी लोग तुम्हें सिस्टम बोल रहा है कि वेदास और पुराणास पढ़ो, तो दैट्स फूलिशनेस. ट्रू ब्रो. तो अष्टवक्र इज सेम थिंग. शिव इज सेइंग सेम थिंग टू लॉर्ड रामा कि if you are enlightened being, why are you doing puja and all these things, and why are you doing Vedas and Puranas? Even Osho said this कि अगर तुम enlightened हो ना, तुम्हारे अंदर से वेद निकलेंगे, जो तुम बोलोगे वो वेद बन जाएगा. Wow. He said these things. Wow. Because you're speaking from a place of unity. You're speaking from that one place which is everything else. So I also feel, bro, here's a question that I want to ask you. See, apart from spirituality, you're also a content creator. You run an amazing, successful community. But if you actually decode it, there is spirituality in everything. Good, bad, ugly, worse. Amazing things in life has spirituality. One of the things I want to actually relate two things here. I've seen one thing. I was talking to you before this. You're an amazing giver, bro. To your community, you over-deliver. Right? You over-deliver. I know it because I am in your community group. I've seen it, right?
and people will always win when there's giving happening, and whoever is giving, they're always seen as bigger people. Can you tell me the relationship between giving and spirituality, and how you see it aligned, and can we take some examples from the past and our maybe from the stories that we've read and understood, how giving can actually change somebody's life? I think giving is changing the life of people from very our ancestral time. मतलब जो लोग ज्ञानी होते थे और जो ज्ञान देते थे, लोग उनके सामने झुकते थे. इवन मैं अगर एक रिसेंट एग्जांपल दूं, अभी अंबानी जी के यहाँ शादी हुई है, तो वहाँ पे जो सुपरस्टार्स थे उनसे सर्व कराया गया है. और जो लोग रामदेव जैसे थे, जो ज्ञानी थे, उन्होंने बैठ के खाया है. तो जिसके पास ज्ञान था उसने बैठ के खाया है, जिसके पास पैसा था उसने सर्व किया है नौकरों की तरह. That's a brilliant तो मतलब जिसके पास ज्ञान है उसके सामने हर कोई झुकता है, भले ही वो अंबानी हो. तो अब अगर मैं अपनी कम्युनिटी को कुछ वैसा ही ज्ञान दूंगा, कुछ वैसा ही उनके जीवन में कुछ ऐसा डालूंगा, क्योंकि मैं पर्सनली उनसे बहुत कनेक्ट होता हूँ Q&A के थ्रू. वो लोग पूछते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, ये करूँ कैसे करूँ, तो मैं उनसे वो कनेक्ट होता हूँ. वो मेरी बातों को बड़ा हिट कर लेते हैं. उनको पता चल जाता, उनको लगता है कि यार ये इसने हिट मारा है बढ़िया, तो वो वहाँ कनेक्ट कर जाता है. तो जब वो ऐसी बात सुनता है मुझसे, तो वो ऑलरेडी बो डाउन हो जाता है टुवर्ड्स मी कि यार ये कंटेंट नहीं देता, ये और भी चीज़ें देता है. क्योंकि वो लोग डीएम में मेरे आते हैं, ये नहीं बोल के आते हैं कि सर प्लीज हेल्प मी इन दिस, भाई प्लीज हेल्प मी इन दिस, दे से मी भाई. सो दिस इज द कनेक्शन वी हैव वी क्रिएटेड विद आवर कम्युनिटी. और जब तुम देते हो अपनी कम्युनिटी को, तो आई थिंक एवरीवन फील ब्लेस्ड और ऑड, यार इसने मुझे कुछ दिया है तो मुझे इसके खिलाफ तो कुछ नहीं करना है, एटलीस्ट इसके सपोर्ट में कुछ करना है. मतलब अगर तुम्हारी माता है जो तुम्हारी, वो तुम बचपन से तुम्हारे लिए कुछ करती आ रही हैं, तुम्हें हमेशा देती आ रही हैं, क्या तुम उनके खिलाफ कभी हो सकते हो? नहीं हो सकते. वो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है हमारा कि अगर कोई भी हमें देगा, हम उसके खिलाफ हो ही नहीं पाएंगे और हम हमेशा उसके बो डाउन ही रहेंगे. तो ये हमारा नेचुरल इंस्टिंक्ट है, ये हम चेंज भी नहीं कर पाएंगे इतनी जल्दी. So bro, today we live in a very unhappy world. Very unhappy world, right? Everybody is in some sort of anxiety, state of depression. And I feel right now and in the next 100, 200 years is when everybody requires India and its knowledge. Especially meditation, yoga. But what do you think could be the ideal way to do this? What do you think? Now you have 500,000 followers on Instagram. If you had to at least inspire 10% of them to find a way to sort out that mental health issues and all of that, what would be the ideal way you'd suggest they start? एक मैंने जय शेट्टी की बुक में एक चीज़ पढ़ी थी कि अगर तुम्हें सबसे पहले मिरर में देखना है ना, तुम पहले मिरर को साफ करना होगा. तो अगर तुम्हें इस वर्ल्ड में लव या इस तरह की पीस हटाना है ना, मतलब लाना है ना, तो पहले जो हेट्रेड है उसको हटाना होगा. अब हेट्रेड कैसे हटती है? मेरा एक सिंपल सा माइंडसेट है कि तुम्हारे पास जो होता है ना, तुम वो देते हो लोगों को. मतलब अगर मेरे पास ज्ञान होगा तो मैं ज्ञान दूंगा, अगर मेरे पास खुशी होगी तो मैं खुशी दूंगा. तो लोगों को क्या करना चाहिए? उनको सिर्फ अपने एक्यूमुलेशन पे ध्यान रखना चाहिए कि वो जो चीज़ें एक्यूमुलेट कर रहे हैं अपने अंदर, वो अच्छी होनी चाहिए. ऐसा ना हो कि वो गुस्सा एक्यूमुलेट कर लें. मतलब मैं बताता हूँ, जो लोग हमारे जो कम्युनिटी है उसमें कुछ लोग ऐसे भी थे जो हेट कमेंट भी करते हैं. तो ऐसा नहीं होता कि मुझे हेट कमेंट करते हैं मुझे बुरा लगता है, मुझे उन लोगों पे दया आती है. दया इसलिए आती है कि यार इसके जीवन में कितना दुख होगा कि इसे हेट कमेंट करने की ज़रूरत पड़ी. क्योंकि मैं अगर चाहूँगा, अगर कोई गलत कर रहा होगा व्यक्ति, तो अगर मैं उस पर कमेंट करूँगा तो मैं करूँगा कि भाई यार तू अच्छा कर सकता है इससे, मैं ये कमेंट करूँगा, मैं उससे अच्छा कमेंट करूँगा क्योंकि मेरे अंदर अच्छा ही है. अब मैं सोचता हूँ कि जो लोग हेट कमेंट करते होंगे उनके अंदर कितना दुख होगा. तो मुझे उनसे घृणा नहीं होती, मुझे उनसे ये नहीं तो गुस्सा नहीं आता, मुझे उनके लिए दया आती है कि यार बेचारा क्या दिक्कत आई होगी, इसको किसने हेट कमेंट किया. ऐसे ही लोग जो गुस्सा कर देते हैं, जल्दी ट्रिगर हो जाते हैं, उनको अगर तुम देखो तो उनके लिए बड़े दया भाव उत्पन्न होता है कि यार कितना दुख होगा जो इतनी जल्दी से गुस्सा आ गया. तो मैं कहता हूँ कि अगर उसे गुस्सा है ना, मतलब उसके अंदर गुस्सा भरा हुआ है, वो वही दे रहा है जो उसके अंदर है. अगर कोई हेट कमेंट कर रहा है, मतलब उसके अंदर हेट भरी हुई है, तभी वो हेट डिलीवर कर रहा है. अगर मेरे अंदर सारी चीज़ अच्छी हैं तो मैं अच्छी चीज़ ही डिलीवर कर पाऊंगा. मेरे अंदर हेट ही नहीं है तो मैं हेट कहाँ से डिलीवर करूंगा. तो इफ़ वी वांट टू मेक दिस वर्ल्ड अ प्रोस्परस और अ पीसफुल वन, सो वी शुड फोकस ऑन व्हाट वी आर एक्यूमुलेटिंग विद इन आवरसेल्फ. तुम हेट अपने अंदर ला रहे हो, गुस्सा अपने अंदर ला रहे हो, तो क्या कर रहे हो? तो स्पिरिचुअलिटी इज दैट वन वे जहाँ से हम इन सब डिस्ट्रैक्शंस को हटा सकते हैं, अपना मिरर साफ कर सकते हैं. मिरर साफ हो जाएगा तो हम खुद ब खुद अपने आप को देख लेंगे. खुद का साक्षात्कार जिसको हम बोलते हैं आत्म साक्षात्कार. एक बार ये चीज़ें हट गई तो आत्म साक्षात्कार हो जाएगा.
तो मुझे ये लगता है कि हमें कुछ ऐसे बड़ी चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई हम ध्यान लगा के कुछ ऐसे एनलाइटेड हो जाएंगे। जो कमियां हैं उसको हटा दो, तो फिर जो अच्छाइयाँ हैं वही रह जाएंगी फिर तो बची हुई। तो उस कमियां हटानी है तो मैं अच्छाइयाँ तुम्हारे अंदर हैं पहले से, मेरा ये कहना है। क्योंकि मैंने पढ़ा था शिव पुराण में एक चीज़ पढ़ी है, तो उसमें ये लिखा है कि जो लोग ऐसा मानते हैं कि मनुष्य दोषी है, तो कहते हैं ये मनुष्य दोषी नहीं है, मनुष्य को तो एकदम निर्गुण भेजा है, निर्गुण पैदा हुआ है वो। जब वो पैदा हुआ था, क्या तुम कह सकते हो तो कि ये अपराधी है, इसने इतने पाप किए हैं, इसने इतने पुण्य किया? नहीं कह सकते तुम। वो पैदा ही निर्दोष हुआ था। वो जैसे जैसे बड़ा हुआ उसके कर्मों ने से निर्दोषी बनाया, सॉरी उसको दोषी बनाया। तो इट्स नॉट अबाउट कि वो बंदा क्या है, वो कैसा है। मतलब उसका कहने का मतलब ये था कि हम में से हर कोई निर्दोष है, बस हमारा देखने का तरीका अलग है। और अगर हमारा देखने का तरीका बदल जाए, वही है माइंडसेट, अगर हमारा चेंज हो जाए कि हम दूसरे को क्या दें, तो वो अगर चेंज हो जाए तो सब कुछ चेंज हो सकता है। तो स्पिरिचुअलिटी इज दैट वन वे व्हिच कैन चेंज दिस थिंग। I have another question on the same thing, bro. But I feel one of the most important things for spirituality. See, Ashutosh, not everybody is like you, right? When you were in school, you had little taste of spirituality. Not everybody is blessed to get that. One very important thing I feel is the importance of community, the people around you, to get into spirituality. So if you have to get into spirituality, somebody around you has to be in spirituality. And that is where I feel how most spiritual masters have a community, a commune or a sangha, where practices can be done together. What do you think is the role of a community in the growth of spirituality for an individual? Okay, now this is a good question. Now, I will tell you this thing ki the thing you said ki the role of community. I think the role of community is secondary, because first you need a trigger to get on to the spiritual path. Now if you analyze, or if you think of those people who went into spirituality, or those are mostly the rich people, those are mostly the luxurious people living their life. Gautam Buddha, king, Lord Rama, Krishna, they became the yogi, they became such people, spiritual people, अध्यात्म वाले। इसका एक कारण है, इसका एक कारण ये है कि संवेदनशीलता इसको बोलते हैं, इट्स कॉल्ड सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी टुवर्ड्स सिचुएशंस और योर सराउंडिंग्स। गॉट इट। तुमसे कैसे हो। तो अगर मैं बोलूं कि अमीरी क्या है, तो मैं कहूंगा संवेदनशीलता अमीरी है। संवेदनशीलता का अमीरी होने का मतलब है कि तुम कितने सेंसिटिव हो अपनी सराउंडिंग्स को लेके। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे एक बच्चा है फुटपाथ पे, वो भीख मांग रहा है, मेरे लिए बड़ा नॉर्मल है, भीख मांग रहा है, मैंने कितने ही देखे हैं। एक ऐसा बंदा आ जाता है जिसके देश में कोई भीख ही नहीं मांगता है, वो आके देखते उसको कैसा लगेगा, अरे भाई ये तो भीख मांग रहा है, तो ही विल बी वेरी सेंसिटिव टू दैट। करेक्ट। तो उसके लिए वो संवेदनशील होगा। जब गौतम बुद्धा ने कभी डेथ ही नहीं देखी और अचानक से डेथ देखी, वो तो बड़ा संवेदनशील हो गए, अरे भाई साहब मरता भी है कोई। देन ही बिकेम एनलाइटेंड कि यार ये पहली बार घटित हुआ है मेरे देश में। तो अब हमारी लिविंग ऐसी हो गई ना इंडिया में मोस्टली कि हम हर तरह का बैकग्राउंड देख चुके हैं, गरीब से लेके, मतलब हमारे सामने मर्डर भी होता रहेगा ना, हम इतने संवेदनशील नहीं होंगे। हाँ ठीक है, तो होता रहता है, हम इतने हो गए, ठीक है। और मैं कहता हूँ अब क्यों अंग्रेज लोग हमारे यहाँ पे आके स्पिरिचुअल हो जाते हैं, उनके यहाँ पे से कुछ नहीं होता, उनका सिस्टम बड़ा ऑर्गेनाइज्ड है। यहाँ पे आके देखते हैं गरीब देख रहे हैं, अजीब अजीब तरह के गरीब है, जेब कतरे हैं, मर्डर हो रहा है, वो बड़े संवेदनशील हो गए इसके प्रति। तो वो जब नेचर के प्रति संवेदनशील हो जाता है कि यार ऐसा भी हो रहा है ह्यूमैनिटी के साथ, तो दे बिकेम स्पिरिचुअल, वो स्पिरिचुअलिटी ट्रिगर होती है। So bro, you're saying there's a comfort zone. You have to be thrown out of that comfort zone in a spiritual way, not physically or mentally. Spiritual way, you have to be thrown out of your comfort zone, so that now you see what is the difference between your reality and actual reality, and now to bridge that you come to spirituality. मतलब जब तक वो ट्रिगर नहीं मिलेगा तुम्हें, और वो ट्रिगर मैं कह रहा हूँ वो संवेदनशीलता है। मतलब हिंदी में एक बहुत अच्छा वर्ड है ये। Yeah, I mean you can't translate everything to. कि संवेदनशीलता ही वो अमीरी है जिसको हर कोई चाहेगा। अगर मैं इतना सेंसिटिव हो जाऊं अपनी सराउंडिंग्स के अराउंड कि यार फॉर एग्जांपल आप स्पीच दे रहे हो, अब नॉर्मल स्पीच दे रहे हो, लेकिन मैं देख रहा हूँ यार क्या स्पीच दे रहा है, इसकी टोन ऐसी है, इसका वोकैबुलरी ऐसा है, मैं कितना संवेदनशील हो रहा हूँ और मैं कुछ सीख रहा हूँ। एक दूसरा बंदा बैठा हो हाँ ठीक बोल रहा है, किसने ज्यादा सीखा, मैंने ज्यादा सीखा, अमीर कौन बना, मैं बना। तो संवेदनशीलता अमीरी है, पैसा अमीरी नहीं है, संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी टुवर्ड्स योर सराउंडिंग्स, ये अमीरी है, क्योंकि ये तुम्हें स्पिरिचुअलिटी पे ले जाएगी फिर बाद में अगर तुम संवेदनशील हुए।
I feel very, very important point also. This is where I feel the moment you're sensitive is where intuition comes in. That intuitive thinking to solve any problem, no matter what the crisis is, you will not be shaken. Because you're sensitive to the surrounding, you can feel energy come. And I feel some of the greatest scientific discoveries are from people being sensitive to these things, right? Einstein was sensitive for the theory of relativity. That's why he got it. Even Einstein, yeah. Even Newton. Newton, yeah. एप्पल कितनों के यहाँ पे गिरता है, कौन सेंसिटिव हुआ, जिसको वो सेंसिटिव उसने ग्रेविटी का डिस्कवर किया. तो सेंसिटिविटी इज एवरीथिंग. सेंसिटिविटी गिव्स यू अ पाथ. वो कहीं भी दे सकती है पाथ. मे भी कोई बिजनेस में दे सकती है, मतलब सेम मार्केट तुम्हें दिख रहा है, लेकिन कोई सेंसिटिव है मार्केट के लिए, उसको एक लूप होल दिख गया, अरे भाई यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे बिजनेस बनेगा. किसको स्पिरिचुअलिटी में दिख गया, वो उधर चला गया. सेंसिटिविटी ब्रिंग्स एवरीथिंग इन यू. True. But I also feel community now, okay, so you're saying first you have to be sensitive to get trigger. Then you need a community. Community to grow. Or so that they can help you with their methods, or to basically pamper your spiritual path. Yeah, true. And then you eventually find your truth from there. What works for me? What is my way of meditation? Who is my guru? And then you go to the next path, which I feel is now not only exploring. You have understood your spirituality, and I feel this is where we come to the point of karma. हम गौतम बुद्ध की बात करते हैं. गौतम बुद्ध के साथ यही हुआ. पहले ट्रिगर हुआ, वो जो डेथ वाला मोमेंट था, डेथ देखी. उसके बाद गौतम बुद्ध 6 साल तो सारनाथ में भटके कि मुझे ज्ञान दो, मुझे सीखना है. उनको थोड़ी एकदम से ज्ञान मिल गया. वो ट्रिगर हुआ, वो घर छोड़ के गए. 6 साल सारनाथ में रहे, फिर शायद 3-4 साल एक और जगह रहे, तब भी किसी ने उनको ज्ञान नहीं दिया. तब उन्होंने आके उस वट वृक्ष के नीचे आके बोला कि अगर मैं यहाँ प्राण त्याग दूंगा तो ज्ञान मिल जाए. तब उनको खुद को ज्ञान मिला. तो मतलब दे ऑल्सो लुकिंग फॉर सम सराउंडिंग्स, कि मुझे कोई ऐसे सराउंडिंग्स मिल जाए जो ज्ञान दे दे मुझे. Now, because you spoke about Buddha, there's one line which I like. Osho says, if you have to get spiritual, if you have to be mentally liberated, spiritually liberated, physically liberated, first become rich. The first and the most, see, now this is a big, now for me, out of everything we've spoken, this is big topic. Because our listeners, you also want to be rich, I also want to be rich, they also want to be rich. But after that, what? All of us can be rich. Tell me what's your thought about this? First become rich, then become spiritual. It's totally true. I mean, that's what we are talking about. संवेदनशीलता किसको आएगी? जो इन सब चीजों से बाहर निकल जाएगा. बाहर कौन निकलेगा? जो रिच बन जाएगा, जो अमीर हो जाएगा, जिसको ऐसी चीजें कभी दिखेंगी नहीं. गौतम बुद्ध रिच हुए, राम रिच हुए, कृष्णा रिच हुए, उन्होंने ऐसी चीज नहीं देखी. और हम ये नहीं कह रहे कि वो भगवान के अवतार थे इसलिए होते, ठीक है, लेकिन उनकी अपब्रिंगिंग तो इंसान जैसे हुई, उनको ज्ञान तो हमारे जैसा मिला. तो गौतम बुद्ध की ही बात करें तो उनके साथ शुरू से ही वैसे हुई, उनको रिच हुए. तो हमें भी वो कहते हैं कि तुम रिच बनोगे तो तुम्हारा एनवायरनमेंट वो खत्म हो जाएगा जहाँ से तुम संवेदनशीलता तुम्हारी मर सकती थी. संवेदनशीलता हमारी वहां मर जाती है जहाँ पे हमारे लिए ये घटनाएं बड़ी नॉर्मल हो जाती हैं. मारपीट, चोरी चकारी, गरीबी, दरिद्रता, ये नॉर्मल हो जाते हैं. वहाँ संवेदनशीलता मर जाती है. और जहाँ पे हम उनसे ऊपर निकल जाते हैं, फिर अचानक से एक्सपोजर मिलता है उसका, तब वो संवेदनशीलता ट्रिगर होती है. तो रिच आदमियों को वो जल्दी ट्रिगर होगी. इसलिए इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन अमेरिका से आके यहाँ पे आते हैं तो ट्रिगर हो जाते हैं, वो स्पिरिचुअलिटी में आ जाते हैं. मतलब अभी भी तुम मथुरा बनारस में जाके देखोगे, लोग अपना जीवन बिजनेस छोड़ के इधर आ चुके हैं. उनको स्पिरिचुअलिटी ट्रिगर कर चुकी है. वो अमीर लोग थे. Even Steve Jobs, for that matter, came to meet Neem Karoli Baba when in his 80s, in the 80s, right? And why did he come? I always keep telling people, especially my students, if you think Hinduism, spirituality and all of this is nonsense, what phone you use? Redmi? What phone do you want in your life? iPhone. The guy who found iPhone came to India in search of a monk. Now tell me who's great, the guy who made the iPhone or the guy who he came searching for? The reason I always bring this example is because it crushes your ego. Everybody wants to be like Steve Jobs, over a $1 trillion company, the most successful company of mankind. But he came for Neem Karoli Baba's ashram for his blessings, knowledge and everything. I feel there is a lot of understanding here. I feel it is contrast, this yin and yang thing, white and black, everything to nothing. I think the spirituality can be understood through these contrasts as well. And because without this contrast, you cannot get it.
Steve Jobs did $1 trillion company. Neem Karoli Baba never had even 1 crore rupees. Nothing he had. कुछ भी नहीं. Everything, person who had everything came to a person who had nothing. And he is not even a consultation guru. He never worked with Wall Street people before. True, yeah, true. So what else do you think on this, Ashutosh? Because I feel people are driven by money The today. thing you said na, that black and white thing, this had a thing ki if you want to be spiritual, or for example if you want to be religious, if you don't believe in God, मतलब क्योंकि हमें जैसे हम पैदा होता है हमें धारणा दी जाती है कि ईश्वर है, हमें ईश्वर की पूजा करनी चाहिए, लेकिन वो हमें थोप दी जाती है, वो हमें मिलती नहीं है खुद से, वो थोपी जाती है. तो मुझे ऐसा लगता है कि a spiritual, a perfect spiritual or a perfect religious person is one who is atheist once. जो कभी एथेइस्ट रहा होगा, जिसने, क्योंकि एथेइस्ट ने जीरो से शुरू किया है. एथेइस्ट ने जीरो से शुरू किया. तुमने क्या, तुम पैदा हुए, तुम्हारे माँ बाप ने 2 या 3 से शुरू करवा दिया तुमसे कि ये भगवान है, इनकी पूजा करो. तुमने कभी जीरो देखा ही नहीं. और जो 2-3 करके भी 10 तक नहीं पहुंच पाता ना, उनका वो लड़खड़ा जाते हैं. वो फिर भगवान में भरोसा करना छोड़ देते हैं, वो जीरो पे आ जाते हैं. अब जब जीरो पे आ जाता है उसको पता चलता है कुछ हो ही नहीं रहा है. देन ही बिकम्स फ्रॉम द स्क्रैच. अब उसके दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि अब वो भगवान को नकार चुका है. अब उसके दिमाग में क्वेश्चंस आएंगे, ये सब कैसे बना, पृथ्वी कैसे बनी. अब वो ढूंढेंगे इसके आंसर. और ह्यूमन कैन नॉट मेक दीज थिंग्स विद दिस प्रिसाइज कैलिब्रेशन. मतलब अगर आज 1% भी ग्रेविटी ऊपर नीचे हो जाए, पूरा सोलर सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा. तो देयर इज समवन हु इज होल्डिंग दिस, देयर इज समवन हु इज डूइंग दिस कैलिब्रेशन एट अ परफेक्ट लेवल. तो वहां से वो लोग सोचना शुरू करते हैं. वो मतलब एथेइस्ट होना जरूरी है. एट अ वंस जब मैंने बोला 11th-12th में मेरा ब्रेक आया, 11th-12th वाज माय ब्रेक वेयर व्हेन आई वाज एथेइस्ट. जब मैं भगवान में भरोसा नहीं करता था, लोग मंदिर जाते थे, मैं हाँ तू जाना मंदिर, मैं नहीं जा रहा यार. एथेइस्ट था, स्पिरिचुअल, नो स्पिरिचुअलिटी, नो मेडिटेशन, नो गॉड, कुछ नहीं. कुछ नहीं. एट द टाइम देयर इज अ वॉइड इन यू कि यार ये तो नहीं है. मतलब कुछ एक फील होता है अंदर कि ये वॉइड हो गया है मेरे अंदर एथेइस्ट होने पे. फिर वो तुम शुरू करते हो कि कैसे हो ये कैसे हुआ. देन इट बिकेम, फिर स्पिरिचुअलिटी मिलती है, फिर वो तो आंसर्स खोलना शुरू कर देती है सारे. मतलब अभी भी अगर मैं एक ब्लाइंड स्पॉट दूं सोचने का, हम इमेजिनेशन में क्या कुछ सोच सकते हैं कि मतलब सब कुछ सोच सकते हैं, लेकिन अब तुम सोच के देखो कि ब्रह्मांड कहाँ तक फैला होगा. क्या तुम सोच सकते हो? क्या तुम इनफाइनाइट को सोच सकते हो? क्या तुम इमेजिनेशन कुछ भी कर सकते हो, लेकिन तुम फिर भी इनफाइनाइट नहीं सोच सकते. तुम एक बार सोच के देखो कि चलो और फैला हुआ है, तारे आए जा रहे हैं, कहाँ तक आए जा रहे हैं. यू कैन नॉट इमेजिन द यूनिवर्स.